محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور بولنے والے بندر کا۔ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ کسی دور میں ایک بستی ہوا کرتی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، خوبصورت اور سرسبز درختوں سے بھری پڑی تھی۔ اس بستی میں ایک بہت ہی بڑا جنگل تھا۔ اس بستی کے رہنے والے لوگ مسلمان نہیں تھے۔ اس جنگل میں کوئی جانور نہیں تھا، وہاں صرف بندر ہی بندر تھے۔ وہ بندر بستی والوں کو تنگ نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے وہ لوگ ان بندروں کو اپنا خدا مانتے تھے۔ ان بندروں میں سے ایک بہت ہی بڑا بندر تھا جس کے سامنے پوری بستی سجدہ کیا کرتی تھی۔ وہ اپنی دعائیں آرزوئیں اس بندر کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ پوری بستی بندر کے سامنے اپنا سر جھکاتی اور دعا مانگتی۔ وہ لوگ ان بندروں کو کھانا دیا کرتے تھے۔ ان کے کھانے کے لیے ان لوگوں نے وہاں بہت سارے کیلے کے درخت لگائے ہوئے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہمارے ان خداؤں کو کیلے بہت زیادہ پسند ہے، کیونکہ جہاں کیلے ہوتے ہیں بندر وہی ہوتے ہیں۔ اس بستی میں ایک اللہ والے آئے جو اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلانے کے لیے تبلیغ کیا کرتے تھے۔ وہ شہر شہر بستی بستی پھرا کرتے تھے۔ یوں ہی دین پھیلانے کے لیے وہ اللہ کی راہ میں نکلے اور انہیں یہ بستی نظر آئی۔ وہ اس بستی میں آئے۔ جب انہوں نے اس بستی کو دیکھا، بہت ہی خوبصورت بستی تھی، درختوں سے بھری پڑی تھی، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، مگر انہیں وہاں کوئی مسجد نظر نہ آئی جہاں وہ اللہ کی عبادت کرتے۔ تب انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اس خوبصورت جنگل میں بیٹھ کر ہی اللہ کی عبادت کر لوں۔ وہ جانتے تھے کہ یہاں بہت سارے خطرناک جانور بھی ہوں گے، مگر جب ان کی نظر درختوں کے اوپر پڑی تو درخت بندروں سے بھرے پڑے تھے۔ وہ اللہ والے کنویں سے پانی لیتے ہیں، وضو کیا، ایک درخت کے نیچے اپنا مصلی بچھایا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب بستی والوں میں سے ایک شخص نے دیکھا کہ وہ اپنی بستی والوں کو بتانے لگا کہ دیکھو، جنگل میں ایک اجنبی شخص آیا ہے، دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس بستی کا سردار آیا۔ جب اس نے آ کر دیکھا کہ ایک بزرگ نورانی چہرے والے کھڑے ہیں، نہ جانے منہ میں کیا بول رہے ہیں، جب تک وہ اللہ والے نماز ادا کرتے رہے، وہ گاؤں والے وہاں کھڑے ہو کر ان کو دیکھتے رہے۔ جب وہ اللہ والے نماز سے فارغ ہوئے تو بستی والے کہنے لگے، آپ کون ہیں اور یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ وہ اللہ والے نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتے تھے اور تسبیح کرتے ہوئے بولے کہ میں ایک مسافر ہوں، یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا کیوں نہ کچھ دیر کے لیے آرام کے لیے رک جاؤں۔ وہ بستی کا سردار کہنے لگا، کیا آپ کھڑے ہو کر آرام کرتے ہیں؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، ایسی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ اللہ والے کہنے لگے، اگر آپ لوگوں کو برا نہ لگے تو کیا میں یہاں کچھ دن کے لیے رک سکتا ہوں؟ آپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ بستے والے کبھی بھی کسی مسلمان کو اپنی بستی میں رہنے نہیں دیتے تھے۔ اگر کوئی مسلمان آ جاتا تو اس کو جان سے مار دیتے یا بندروں کے آگے زخمی کر کے ڈال دیتے۔ وہ بندر ان کو نوچ نوچ کر کھا جاتے تھے، مگر ان اللہ والے کی زبان میں نہ جانے ایسی کون سی تاثیر تھی کہ وہ بستی والے کہنے لگے، آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ وہ اللہ والے وہاں رہ کر یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ بستی والے کیا کرتے ہیں، کس کی عبادت کرتے ہیں، کس کو خدا مانتے ہیں۔ بستی کا بوڑھا سردار کہنے لگا، آپ تو جب تک چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، مگر آپ ہمارے کام میں کسی مداخلت نہیں کریں گے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے، میں کیوں ایسا کروں گا، اور وہ وہیں بیٹھ کر تسبیح کرنے لگے۔ وہ بستی کا بوڑھا سردار کہنے لگا، ان بزرگ کے لیے کھانے کا بندوبست کرو۔
कुछ नौजवान उठे और उन्होंने दरख्त से केले उतारे। केले उतार कर उन्होंने अल्लाह वाले के सामने ला कर रखे और कहने लगे, आप बहुत ही किस्मत वाले हैं, वरना हमारा सरदार इस बस्ती में किसी को आने की इजाज़त नहीं देता। वो अल्लाह वाले मुस्कुराए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्लाह के नाम से खाना शुरू किया। उन अल्लाह वालों को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। वो केले खा रहे थे और उनकी नज़र ऊपर दरख्त के ऊपर पड़ी। वो सब बंदर उनको झांक झांक कर देख रहे थे। वो अल्लाह वाले उन बंदरों को देखकर मुस्कुराए। उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। उन्होंने पेट भर कर केले खाए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। थोड़ी देर के लिए आराम करने लगे। उसके बाद उठे, वज़ू किया। वो उठे और अल्लाह की इबादत करने लगे। पूरी रात वो अल्लाह ताला की इबादत करते रहे, यहाँ तक कि सुबह हो गई। उन्होंने फजर की नमाज के लिए खड़े हुए और नमाज अदा करने शुरू हो गए। वहाँ बस्ती का सरदार कुछ लोगों के साथ जंगल में आया। उस जंगल में एक बहुत ही बड़ा बंदर था, जिसके सामने वो सरदार सजदे में गिर गए। जिस बंदर के सामने वो सजदा रेज हो रहे थे, वो बंदर सो रहा था। ज़बरदस्ती उसको जगा जगा कर सजदा कर रहे थे। सजदे से उठकर वो उस बंदर से दुआएं मांगने लगे। सब ने दुआ मांगी और वहाँ से उठकर जाने लगे। वो बस्ती का सरदार बोला, देखो ये बुजुर्ग हर वक्त खड़ा ही रहता है, ये आराम भी खड़े होकर करता है और ये सोता भी खड़े होकर है। चलो आज देखते हैं कि आखिर ये करता क्या है। जब अल्लाह वाले ने नमाज मुकम्मल की तो वो बुजुर्ग बस्ती का जो सरदार था वो कहने लगा, आखिर तुम किस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो? जिस तरह तुम करते हो इस तरह हमारे मज़हब में नहीं होता। हम तो इन बंदरों को खुदा मानते हैं, आखिर तुम्हारा खुदा कौन है? वो अल्लाह वाले कहने लगे कि मेरा खुदा अल्लाह है। मैं उस वाहिद अल्लाह की इबादत करता हूँ जिसका कोई शरीक नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। मैं खड़े होकर आराम नहीं करता, मैं खड़े होकर नमाज पढ़ रहा था। इसी तरह नमाज अदा की जाती है। ये फजर का वक़्त है और मैं फजर की नमाज अदा कर रहा था। बाकी 4 नमाजें और हैं। मुसलमान दिन में 5 वक़्त की नमाज अदा करते हैं और अल्लाह को सजदा करते हैं। वो बूढ़ा सरदार गुस्से में आया और चिल्लाने लगा, अच्छा तो तुम मुसलमान हो, यानी कि हमारे दुश्मन हो। हमने तुम्हें इतनी इज्जत दी, बस्ती में रहने के लिए जगह दी, हमने तुम्हें खाना दिया, तुम यहाँ हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हो। तुम एक एहसान फरामोश इंसान हो। तुमने अभी देखा कि हम इन बंदरों की पूजा करते हैं, इन्हीं को सजदा करते हैं। जिसको तुम सजदा करते हो, जिसकी तुम इबादत करते हो, इसको तो तुम देख भी नहीं सकते। वो अल्लाह वाले बोले, इन बंदरों को पैदा करने वाला भी अल्लाह ही है। अल्लाह वाहिद ला शरीक है, जिसकी हम सब इबादत करते हैं और वही इबादत के लायक है। जिस बंदर को तुम सब ने अभी सजदा किया वो सो रहा था। ज़बरदस्ती घंटियां बजा बजा कर उसको जगाया जा रहा था, मगर अल्लाह ताला कभी नहीं सोता, वो हमेशा जागता रहता है। ये बंदर तो यहाँ इन केलों की वजह से हैं। अगर आज ये केले के दरख्त ख़त्म हो जाएं तो ये बंदर यहाँ से चले जाएंगे और अल्लाह ताला ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना उसको ऊँग आती है। ये सुनकर वो बस्ती का सरदार बोला कि तू हमें सिखाएगा कि हम किसकी इबादत करें, किसको सजदा करें, किसको ना करें। हमारे खुदा की तूने बड़ी ही बेअदबी की है, अब तुझे इसकी सज़ा मिलेगी। वो सरदार कहने लगा, इस बूढ़े को इस बस्ती से निकाल कर फेंक दो। उनमें से एक आदमी बोला कि सरदार क्यों न हम इनको बंदरों के आगे फेंक दें, जिस तरह हम पहले दुश्मनों को फेंका करते थे। उसने कहा, हाँ
तुम ठीक कह रहे हो, इसको हमने इतनी इज्जत दी और इसने हमारे ही खुदाओं को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। इसको उठाकर बंदरों के आगे फेंक दो। उनमें से कुछ नौजवान आगे बढ़े और उन अल्लाह वाले को उठाकर बंदरों के आगे फेंक दिया। अल्लाह ताला की कुदरत, उसी वक़्त तूफान आया, आंधी चली, जोरदार आंधी शुरू हो गई। उस जंगल में जितने भी केले के दरख्त थे सारे के सारे उखड़ गए। तमाम दरख्त हवा में उड़ना शुरू हो गए जैसे कोई तिनके उड़ रहे हों, और देखते ही देखते नज़रों से ओझल हो गए। पूरा जंगल एक मैदान बन चुका था। वहाँ कुएं में जो पानी था वो भी सूख चुका था। हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी थी। वो लोग बेहोश हो चुके थे। अब उस मैदान में अल्लाह ताला की कुदरत की हर चीज़, हर नेमत ख़त्म हो चुकी थी। सिर्फ बंदर वहाँ मौजूद थे। जब उन गांव वालों को होश आया और उन्होंने देखा कि हर चीज़ तबाह बर्बाद हो चुकी है, बस्ती की तमाम नेमतें ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ मैदान ही मैदान था। उन सब के चेहरे उड़े हुए थे और सब परेशान खड़े थे। अल्लाह वाले का चेहरा बिल्कुल सुकून में था। वो लोग दौड़ते हुए अपने बड़े बंदर के पास गए और रोने लगे। ये सब क्या हो गया? तू इस आदमी की वजह से हमसे नाराज हो गया है ना? ये तुझको नहीं मान रहा, तू इसको बर्बाद कर दे और दोबारा से इस बस्ती को नेमतों से भर दे। ऐ हमारे देवता बंदर, तू क्या देख रहा है? उड़ा दे इसको। ऐ हमारे देवता, तू हमसे नाराज ना होना, वो सब कुछ वापस लेकर आ सकता है। तू हमसे नाराज हो चुका है। तू जैसा कहेगा हम वैसा ही करेंगे। तू बस इस बुजुर्ग को तबाह बर्बाद कर दे। अब वो बंदर खामोशी से सब देख रहा था और सुन रहा था, मगर अल्लाह जब चाहे जिसको चाहे ज़बान दे दे। अल्लाह के हुक्म से तो पत्थर भी लरज़ जाते हैं और बोल उठते हैं। और वो तो फिर एक ज़ुबान वाला बंदर था जिसको अल्लाह ने बोलने की ताकत दी। वो बंदर कहने लगा, तुम अंधे, गूंगे, बहरे हो चुके हो क्या? तुम नहीं जानते कि इन पहाड़ों जैसे दरख्तों को एक वक्त में कोई इंसान नहीं उड़ा सकता, ना ही इनको कोई हिला सकता है। ये सब अल्लाह की कुदरत है। ये इतने वजनी वजनी दरख्त उड़ गए, हम बंदर और तुम इंसान क्यों नहीं उड़े? अरे बेवकूफ़ तुम हो, इन अल्लाह वाले की बात समझ में क्यों नहीं आ रही तुमको? हमको और तुमको पैदा करने वाला कौन है? वो सिर्फ वाहिद अल्लाह है जिसका कोई शरीक नहीं। हम तो बंदर हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, सोते भी हैं, जागते भी हैं। इसके बाद बंदर ने कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ी, आयतुल कुर्सी पढ़ी और बस्ती वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। उस बंदर ने कहा, हम तो खुद उस अल्लाह के मोहताज हैं। ये पेड़, ये दरख्त वापस हम नहीं ला सकते। अब भी वक़्त है, उस अल्लाह को मान लो, वरना अभी तुम बस्ती को दरख्त हवा में उड़ते देख रहे हो, वरना एक दिन ये पूरी बस्ती तबाह बर्बाद हो जाएगी और तुम सब हलाक हो जाओगे। उस बड़े बंदर ने उन सब बंदरों को इशारा किया कि यहाँ से हम सब चले जाएंगे, क्योंकि हमारे दरख्त और केले जहाँ होंगे हम भी वहाँ जाएंगे। वो बंदर उन तमाम बंदरों को लेकर उस बस्ती से चला गया। अब अल्लाह वाले क्या करते? उस बेजुबान बंदर ने अल्लाह की वाहद होने की गवाही दे दी थी। वो अल्लाह वाले भी वहाँ से जाने लगे और बस्ती का बूढ़ा सरदार दौड़ता हुआ आया, अल्लाह वाले के कदमों में लिपट गया और रोने लगा। कहने लगा कि हमें माफ़ कर दें। एक अल्लाह की गवाही तो उन बेजुबान बंदरों ने दे दी। हमारी बेवकूफ़ी की वजह से हमारी बस्ती तबाह बर्बाद हो चुकी है। यहाँ का पानी खुश्क हो चुका है, हम सब मर जाएंगे। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि वो फिर से हमारे लिए बस्ती को
हरा भरा कर दे, इस बस्ती की तमाम नेमतें हमें वापस कर दे। वो अल्लाह वाले कहने लगे, मैं तो एक अल्लाह का अदना सा बंदा हूँ, ये मेरे बस में नहीं है, फिर भी मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और तुम लोग एक वादा करो, कभी भी इन बंदरों को अपना खुदा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे हक में दुआ करूँगा वो सारे बंदर यहाँ वापस आ जाएं। हो सकता है कि वो बेजुबान जानवर यहाँ वापस आ जाएं और ये दरख्त दोबारा से उग आएं। वो सरदार कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? वो अल्लाह वाले कहने लगे, तुम सब एक अल्लाह की गवाही दो, किसी फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि साफ दिल से अल्लाह ताला की गवाही दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, बेशक वही इबादत के लायक है। उन सब बस्ती वालों ने कहा कि हम गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है। वो अल्लाह वाले हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करने लगे और फिर अल्लाह के हुक्म से वहीं आंधी और तूफान चला और दरख्त दोबारा से उसी जगह पर आकर खड़े हो गए। फिर अल्लाह वाले उठे, पूरी बस्ती को कलमा पढ़ाया, सब ने एक साथ बुलंद आवाज़ में कलमा पढ़ा और पूरी बस्ती मुसलमान हो गई। वो अल्लाह वाले उन बस्ती वालों को कहने लगे कि इन बंदरों का ख्याल रखना, ये अल्लाह की मखलूक हैं, हमेशा सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करना, कभी भी उसकी नाफरमानी ना करना। और फिर वो अल्लाह वाले कहीं और चढ़ पड़े अल्लाह ताला के दीन को फैलाने के लिए। अल्लाह अकबर। मोहतरम नाजरीन, शिरक एक नाकाबिले माफ़ी गुनाह है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि यकीनन अल्लाह ताला उस गुनाह को तो माफ़ नहीं करता कि उसके साथ शरीक ठहराया जाए, उसके सिवा जिसके जिस चाहे गुनाह को माफ़ कर दे, और वो जिसने अल्लाह के साथ शरीक किया उसने बहुत ही बड़ा बुहतान बांधा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक अच्छी बात कहने और उसको आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए।